Okay, prefixes. After having known how to write a number in in exponential notation, we can use prefixes to further simplify writing the numbers in more easier form. For example, I have this number 5.678 multiplied by 10 to the power -6 meters. Now this 10 to the power -6 has been given a special name, so which we can use as a prefix. Why it is called prefix? Because pre means to come first before the unit. I can write this 10 to the power -6 as 5.678 small m and then another small. This small m is basically a prefix for milli. ठीक है, ये जो 10 की पावर -6 है, this has been given a special name of prefix. Sorry, not milli but micro. -6 है micro, and the symbol for micro is this one. This is a Greek letter micro. So whenever 10 to the power -6 comes in a magnitude, I can write it as a micro with the letter micro. This is a prefix for 10 to the power -6. ठीक है जी. Similarly, I had this number 10 to the power +6, just like this number. अगर ये नंबर मेरे पास ये होता 5.678 10 to the power +6 meters, let's say. Now this 10 to the power +6 has been given the name as 5.678 mega और a million. ये कैपिटल एम किसको शो करता है? मेगा को. दिस इज ए प्रीफिक्स mega with the letter capital M as its symbol. With the letter capital M as its symbol. Similarly, I have other prefixes as well. For example, if I have 10 to the power -3, this is called milli with the symbol small m. और 10 to the power +3 हो तो इसका सिंबल क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है? किलो with the letter small k. ठीक है. So these are various prefixes which we can use. For example, if I have 5000 grams is the mass of something, I can write it as 5 into 10 to the power 3 grams, which means 5 kilograms. Now this k comes for this 10 to the power 3, which is a prefix. समझ आ रही है सबको बात? It's not very difficult at all. So we can use prefixes to write down the magnitudes, and remember, prefix का मतलब ही है कि it will always come before the unit. ये grams unit है, SI unit है, और k क्या है? इसका prefix है. Similarly, यहाँ पे micro is the prefix, m is the unit. अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैपिटल M, तो ये प्रीफिक्स है और ये यूनिट है. जो 10 की पावर -3 है, अगर इसकी एग्जांपल लें, आई हैव लेट्स से
7 into 10 to the power minus 3 meters. So I can write it as 7 millimeters. Now you have two small m's. You should not be confused about these two small m's. First m is about prefix. The second one is the symbol for the unit. ठीक है ना? तो हमेशा जो लेटर पहले आएगा वो प्रीफिक्स को शो करेगा, जो बाद में आएगा वो यूनिट को शो करेगा. Don't get confused even if you have the same letters. You can see the table of prefixes on the page 8 of chapter number 1, and usually the prefixes start from 10 to the power negative 12 से लेके -15 तक जाते हैं. जैसे कि उसका तो आप बहुत सारों को तो आप फेमिलियर हैं, आप जानते ही होंगे. जैसे कि 10 टू द पावर 12 है तो ये टेरा को शो करता है, जैसे टेराबाइट्स में मेमोरी होती है कंप्यूटर की. सिमिलरली गीगा है 10 टू द पावर प्लस 9 है, मेगा 10 टू द पावर प्लस 6 है, किलो पावर 3 है, हेक्टो 10 टू द पावर 2, डेका 10 टू द पावर 1 है, इसके लिए यूज करते हैं. सिमिलरली डेसी 10 टू द पावर -1 है, सेंटी 10 टू द पावर -2. ये जितने भी 10 टू द पावर्स हैं उनके लिए ये प्रीफिक्सेस होते हैं, और आपको ये टेबल याद होना चाहिए ताकि अगर प्रॉब्लम्स में आप इनको यूज कर सकें. देन माइक्रोग्रिड 10 -6 है, नैनो 10 टू द पावर -9 है, और सो ऑन, पाइको वगैरह. ये टेबल ऑफ आपने देख लेना है सब में. ओके जी, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? प्रीफिक्स यूज होता है भाईजान इसलिए कि ये हमारे लिए प्रीफिक्स की फॉर्म में बजाय पहले हमने क्या सीखा है कि ये इतना लंबा थोड़ा नंबर लिखने की बजाय हम ये लिख लें, आसानी है. फिर हमने कहा कि इसको भी आसान बना लिया, इसका हमने वो प्रीफिक्स बना लिया 10 टू द पावर 6 जो लिखा था मैंने ये. तो ये सिंपल एक कैपिटल एम का मतलब ये है कि ये एक प्रीफिक्स है. ये इट्स जस्ट लाइक मेकिंग योर लाइफ इजियर टू राइट इन अ सिंपल वे. टू राइट मैग्नीट्यूड्स, इफ यू हैव ह्यूज मैग्नीट्यूड्स लाइक आपके पास लाखों में या करोड़ों में उससे स्मॉलर वैल्यूज में वैल्यूज आ रही हैं, तो आप उनको आसानी से प्रीफिक्स में लिख सकते हैं. ठीक है ना? प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू write huge, very large or very small magnitudes into smaller numbers. You have to write less number of letters to write in the form of prefixes. Okay? Now there are some exercises on the page. You can do these exercises. Always keep in your mind that ये जो physics in context की बुक है जिसका चैप्टर 1 मैंने आपको सबको लोग डूडल पे जो है वो अपलोड किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं. इस फिजिक्स इन कॉन्टेक्स्ट बुक का नाम है. आई थिंक आपको मैंने वो कोर्स लिस्ट अभी चले वो मैं आपको ईमेल कर देता हूँ. आई थिंक मैंने अभी ईमेल नहीं की. तो जो कोर्स का कंटेंट है वो भी आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा. और ये आपने जो है इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये आपने करते रहना है साथ साथ. ठीक है? देर आर पार्ट ऑफ द लेक्चर. अगर फर्ज करें मैं नहीं भी करवा रहा तो वो इतने आसान है कि आप खुद से वो प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइज हैं फॉर अबाउट राइटिंग द नंबर्स इनटू एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी अरिथमेटिक नोटेशन. अच्छा, आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीख लिया है तो रिवर्स में भी जा सकते हैं आसानी के साथ. वो मेथड मैंने अभी बताया आपको, सामने लिखा भी होगा. If you are given a number in exponential notation, can you write it back into the normal arithmetic notation? बस ये नंबर है, मैं कहता हूँ इसको वापस इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखें, अरिथमेटिक फॉर्म में लिखें. क्या करेंगे? एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे देखें. जो रिवर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते.
क्या ख्याल है? ये नंबर है ना, ये वाला, इसको आपने रिवर्स लिखना है, यानी कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म जो इसकी अरिथमेटिक फॉर्म है, ये कौन सी इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन है. दिस इज एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड यू हैव टू राइट इट बैक इनटू द ओरिजिनल अरिथमेटिक नोटेशन. तो सबसे पहले सिंपली आप क्या करेंगे कि आप ये जो 10 की पावर -6 है, सिंपली या तो दो तरीके हैं इसको करने के. आप इसको 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर से करके देखेंगे आपको सीधा वो सामने डिस्प्ले कर देगा नंबर और जीरोस लगा के, ठीक है. या वैसे ये मेथड आपने स्कूल में छोटी क्लासेस में सीखा था. आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेड 7 ग्रेड 8 मैथमेटिक्स और ग्रेड 7 ग्रेड 8 वो 7वीं 8वीं 9वीं का जो मैथ्स होता है उसमें ये चीजें सिखाई जाती हैं कि एक नंबर की अरिथमेटिक नोटेशन को एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखते हैं और उसको वापस बैक किस तरह लिखते हैं. इट्स बेसिकली मैथमेटिक्स, इट हैज नथिंग टू डू विद फिजिक्स. मतलब फिजिक्स में भी क्योंकि वैल्यूज यूज होती हैं इसलिए ये नोटेशन जो है ना यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करनी जरूरी है. तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कुछ इसी किस्म के हैं कि आपको कुछ नंबर्स गिवन है, आपने उनको साइंटिफिक इसमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है और कुछ क्वेश्चन उसमें आपने उसको रिवर्स करना है वापस अरिथमेटिक नोटेशन में. तो यू कैन डू प्रैक्टिस फॉर दैट. इवन यू कैन यूज द कैलकुलेटर सिंपली टू कैलकुलेट सच नंबर्स. ठीक है. सो प्रीफिक्सेस हो गए जी यहाँ पे. एंड प्लीज डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दीज प्रीफिक्सेस एज वेल. Okay, now we move towards one of the very important topics, that is derived quantities. What are derived physical quantities? If you recall from the last lecture, we discussed about base physical quantities, and there were total 8 base physical quantities. जिसको हमने कहा था कि base physical quantities are the fundamental quantities from which we can derive any other physical quantity. And what was the physical quantity? Any quantity which can be measured, जिसको हम measure कर सकते हैं, वो physical quantity होती है. जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं. सो दोज वर द बेस फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज which we make from base physical quantities. There are many derived physical quantities which we encounter in an everyday life. ठीक है. For example, derived physical quantities are made from the base physical quantities. Okay. Examples. If I want to calculate the area of this table, what I will do? आपने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, आपने वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड किया था ना, तो आपने 3 लेंथ्स फाइंड की थी. यू बेसिकली मेजर्ड 3 लेंथ्स: लेंथ, विड्थ एंड हाइट. हाइट इज ऑल्सो लेंथ, विड्थ इज ऑल्सो लेंथ, एंड लेंथ इज द लेंथ वी नो.
ठीक है. If I want to calculate the surface area of this table, I will have to measure two lengths. ठीक है. So I can say area of a rectangle जो होता है, let's say, because it is of the rectangular shape, the tabletop is of rectangular shape. So area is equal to, you simply, चलो rectangle की example ले लें. I will have to measure length multiplied by width. ठीक है. So this will give me the unit of area should be length if it is in meters, width if it is in meters. So what should be the unit of area? It should be meters squared, not meters only, because you are multiplying two lengths, isn't it? So this means area is derived from length. परेशान हो गलत बात कर परेशानी नहीं. और भाई आज का एरिया यही चल रहा है, लेंथ इंटू विड्थ ही चल रहा है, दो वजह से. तो लेंथ को जब विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है. इसका मतलब है एरिया की जो एस से यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर स्क्वायर. बिकॉज इट इज, अगर लेंथ और विड्थ ना हो तो क्या एरिया फाइंड किया जा सकता है? नो वे. सो इट मींस इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. सो एरिया चाहे रेक्टेंगल का हो, किसी भी चीज का हो, एरिया को हम जब भी फाइंड करेंगे वी विल मल्टीप्लाई टू लेंथ्स, इज इट? तो चाहे मैं यहाँ रेक्टेंगल ना भी लिखूं तो बात ठीक है. मतलब एरिया सिंपली आई कैन राइट इट एज एरिया इज length multiplied by width, so area is simply in meter square. ठीक है. Similarly, if I want to find out, जैसे आपने वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड किया था, तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट. वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. So it will be in cubic meters, isn't it? It will be always in cubic meters. You multiply three lengths to get the volume of something. So volume is a derived physical quantity. तो उनकी वैल्यू के साथ साथ उनके प्रीफिक्स भी मल्टीप्लाई. जी, मैं वैल्यू के साथ साथ उनके प्रीफिक्स भी मल्टीप्लाई. हाँ जी बिल्कुल. वो तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज नहीं ना कर रहा. अगर हम कोई वैल्यू यूज करेंगे तो फिर उनके डेफिनेटली पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल, चले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ वी हैव, ये हमारे पास रेक्टेंगल थी, लेट्स से मैं कहता हूँ इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी जो है वो लेट्स से 4 सेंटीमीटर है. तो अब एरिया कैलकुलेट करें ना, क्या आएगा आपके पास? 10 सेंटीमीटर्स into 4 centimeters will be equal to 40 centimeters squared. This is the area of this rectangle. और अगर ये कोई क्यूबॉइड चीज होगी तो फिर 3 लेंथ्स मल्टीप्लाई हो जाएगी. वट एवर द यूनिट्स यू आर यूजिंग. सेंटीमीटर्स है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में. ठीक है. सो एरिया इन वॉल्यूम आर डिराइव्ड क्वांटिटीज. सिमिलरली एक टर्म होती है डेंसिटी, किसी चीज की डेंसिटी. ठीक है. दिस इज डिफाइंड एज mass per unit volume of the object. Anything which has some mass, and if you divide the mass by its volume, you get its density. So mass, as you know, is the base physical quantity, and volume is derived
सो अगर आपने डेंसिटी फाइंड करनी है तो विदाउट मैस और वॉल्यूम आप डेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. सो इट्स यूनिट वुड बी हाउ मच. अगर आप मैस को किलोग्राम में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. क्यों नहीं? नहीं बात समझ आ रही? सो डेंसिटी इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. सिमिलरली एक चीज होती है जी, आगे चलकर हम इन चीजों को टर्म्स को डिफाइन करेंगे. यू माइट हैव हर्ड अबाउट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्पीड, जैसे गाड़ी की स्पीड होती है. स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. जितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती है? लेंथ नहीं होती. इट इज द लेंथ बिटवीन टू पोजिशंस एंड टाइम इज इन सेकेंड्स. सो डिस्टेंस ट्रेवल इफ इट इज इन मीटर्स एंड टाइम इज इन सेकेंड्स, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी? मीटर्स पर सेकेंड. So speed is also derived physical quantity. सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीटर के बाद स्लैश डाल. हाँ बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, absolutely. और you can write m/s, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप kg पर क्यूबिक मीटर, ऐसे भी लिखा जा सकता है. बिल्कुल सही बात है. स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है. सिमिलरली एक टर्म हम आगे चल के डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन. स्पीड या वेलोसिटी एक ही चीज होती है. हम थोड़ा सा उसको आगे डिफाइन करेंगे चल के. स्पीड और वेलोसिटी दोनों की सेम यूनिट होती है. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी divided by the time taken to change that velocity. So this will be defined as change in velocity. मतलब velocity में change आएगी मीटर्स पर सेकेंड में, मीटर्स पर सेकेंड. और टाइम एक दफा और डिवाइड करेंगे तो टाइम से डिवाइड होने क्या हो जाएगा? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और m/s square. So acceleration is a derived quantity. ठीक है. एक लास्ट वन, फोर्स. फोर्स इज डिफाइंड एज mass times acceleration. mass times acceleration. So mass को आप मेजर करते हैं किसमें? किलोग्राम्स में, जो कि बेस क्वांटिटी है. और एक्सेलरेशन कभी क्या डिफाइन किया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. So acceleration force will be measured in kilograms meters per second squared. ठीक है. So force is a derived physical quantity. ठीक है जी. ये एग्जाम्पल, these are only few examples of derived physical quantities. Any question you can ask? Clear to everyone? There are other physical quantities which are derived as well. वो टाइम के साथ साथ जो हमारे सामने आती जाएंगे हम उनको डिफाइन करते जाएंगे. लेकिन ये एग्जांपल्स कुछ आपके जहन में रहनी जरूरी है. ठीक है जी. किलोग्राम की जगह हम ग्राम लिख सकते हैं जी. किलो, जो मैथ की SI यूनिट है ना वो किलोग्राम है. कल या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. बिकॉज 1 ग्राम इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैथ, सो वी यूज किलोग्राम एज द बेस यूनिट or the SI unit for mass. 1 kilo means 1000 grams. ठीक है ना. तो यूजुअली mass को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं. ओके. एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. चलें, थैंक यू जी.